Hello my dear friends. In last lecture of hydrocarbon, we will discuss the competitive points regarding alkenes and alkynes. See, in previous lecture we discussed regarding preparation methods of alkenes. First method we discussed, so let us start from second method, and generally at least one method every year asked in competitive exam. Some methods are well known to you, some methods are new for you, but very important. Dehydrohalogenation. So halogen is removed from alpha carbon, hydrogen is removed from beta carbon in presence of alcoholic KOH, that is already discussed in haloalkane and haloarine chemical properties, and finally alkene is obtained. And most important thing, alcoholic KOH is required, aqueous KOH not give this reaction. Another one is the partial hydrogenation of alkynes. So take any alkynes, or in presence of Lindlar's catalyst, this Lindlar's catalyst as an objective in NEET exam. So main thing is by hydrogenation, one hydrogen is added here, second hydrogen is added here, but the main thing is here cis alkene is obtained. Remember. So if answer is given trans-alkene, then trans-alkene is asked in JEE 2018 exam. So whenever you use Lindlar's catalyst, then this alkene is a cis-alkene. Cis means both hydrogen one side and both alkyl group one side like this. Okay. Cis you know very well. Now this Birch reaction asked in JEE exam 2018, and that was this reagent asked one time in earlier exam, and in one exam one product asked. So in option two options are there, either cis alkene is there, you know very well, hydrogenation is there, so one hydrogen by addition added here. Majority reactions are addition reactions, so two hydrogens are added by breaking one pi bond. Birch reactions are two type, remember, one I will discuss with you in chemical properties also. So here most important thing is trans alkene is obtained, hydrogen opposite side, alkyl group opposite side. Is it clear? Now another important thing is the electrolysis of dicarboxylic salt. So first take dicarboxylic acid like this, CH2COOH, CH2COOH. So this is a weak acid, so not that much ionizes in water. So this hydrogen removed and converted into sodium salt first by reaction with NaOH. Okay. Now this sodium salt of dicarboxylic acid is a strong electrolyte. So electrolysis is possible. And see, this Na gives byproduct in a solution. This CO2, C double bond COO removes as a carbon dioxide gas by oxidation. This product is obtained at anode, and in solution this product is obtained by at cathode by reduction. Okay, and see this mechanism is a radical mechanism. CO2 like this, C double O like this. Okay, it converted into CO2 by releasing one electron, 2 CO2 by releasing 2 electron, and by accepting 2 electron this is converted into ethene, and the product of ethene is depend upon, this one is depend upon dicarboxylic acid. Which type of dicarboxylic acid you have taken? Most important one is the Hofmann elimination. Hofmann elimination, इसको आप देखिए किसके जैसा लग रहा है, इसका नाम है टेट्रा इथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है NH4OH. तो OH तो ये रहा, OH माइनस
NOH माइनस। अब ये 4 हाइड्रोजन को निकाल के हमने चारों जगह पे इथाइल ग्रुप लगा दिया है। बहुत लंबा है इसलिए सिंबल में लिखा है ET। तो इसमें से ये 3 इथाइल ग्रुप एमोनिया रिलीज हो जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें से ऐसा करते हैं ना, NH3 + H2O NH4OH। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो एमोनिया इसमें से अगर हम रिलीज करेंगे तो यहाँ पे H की जगह पे ET है, तो ET3N ट्राई इथाइल टर्शरी एमाइन इसको बोलते हैं। ये एमोनिया के डेरिवेटिव्स फ्रॉम एमोनिया by removing 3 hydrogen, 3 ethyl group introduced. And see this ethyl group 1 and this OH, and from this ethyl group 1 hydrogen minus H2। ethyl group का मतलब होता है CH2 CH3। तो ये CH3 में से 1 हाइड्रोजन निकल के H+ एज है, ये H+ OH के साथ कंबाइंड हो जाता है, वाटर प्रोडक्ट निकलती है और हमको जो प्रोडक्ट मिलती है वो है इथाइन। बहुत बढ़िया होफमान एलिमिनेशन। जब भी कोई साइंटिस्ट का नाम आता है देन दैट रिएक्शन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट इन आवर टेक्स्ट बुक। नाउ अनदर वन इज सिमिलर important is the Wittig reaction. Okay, sometimes reaction given in question and you are asked which of the following reaction, or you are asked which of the following reagent is used in a Wittig reaction. So Wittig reaction is a triphenyl मिथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं मिथिलीन। ये C6H5 3 ट्राइफिनाइल और ये फॉस्फोरस। सो नाम एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, मिथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस। ओके, reagent is, our substrate is aldehyde, and this aldehyde, this double bond shift here, 2 hydrogen RCH double bond CH2। okay, कुछ नहीं करना है, रिएक्शन इज वेरी वेरी इजी। इसको ऐसे ही रहने दो, ये डबल बॉन्ड उठा लो और ये डबल बॉन्ड के साथ वाला ऑक्सीजन ये CH2 की जगह पे रख दो, और ये डबल बॉन्ड के साथ ये CH2 ये CH के साथ ले लो। बस मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा होता नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत इजी वे ये है। तो ये RCH डबल बॉन्ड CH2 हुआ, ये डबल बॉन्ड O वहाँ पे माइग्रेट हो गया, ठीक है। सो दिस इज द बाई प्रोडक्ट। सो Wittig रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन टू फॉर्म आल्किन। फिर से एक बार आप ध्यान दीजिए, ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं करना है, आल्डिहाइड का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे रख देना है, ये डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड के साथ उठा के ये कार्बन के साथ ज्वाइंट कर देना है, बस। इसके बाद ये रिएक्शन है कोप रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। सी दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया टर्शरी अमाइन R3N, maybe methyl ethyl group like that। okay, so 1R attach here R। इसके बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन। ओके, टोटल तीन हाइड्रोजन, और R यहाँ से एक यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 alkene is obtained in coop reaction, and we require hydrogen peroxide as a catalyst। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसमें से ये OH माइनस OH, तो R2N यहाँ पे देखिए R2N, ये 3 हाइड्रोजन, 2 from here 1 from here, so RCH double bond CH2 is alkene, and R2N and 1 OH, and this is released as a hydrogen। वही यहाँ पे इसमें मर्ज हो जाता है, ठीक है, OH ग्रुप निकल के। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट और आप लिख सकते हो, फिर से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से R यहाँ शिफ्ट हुआ, ये R, यहाँ से मुझे निकालना है 2 हाइड्रोजन, यहाँ से मुझे निकालना है 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब H2O2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका हाइड्रोजन रिमूव्ड मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, तो R3N के साथ 1 हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन एज ए हाइड्रोजन नहीं जाएगा, वो OH माइनस जाएगा। अब बाकी बचे 2 हाइड्रोजन, so that hydrogen removed is a hydrogen gas। okay,
Now this is a simple method for you and that is from vicinal dihalide. ये है विसिनल डाइहेलाइड, जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो ZnX2 रिमूव्ड एंड हियर डबल बॉन्ड फॉर्म एंड सॉल्वेंट रिक्वायर अल्कोहल एंड स्लाइट हीटिंग रिक्वायर. जेमिनल डाइहेलाइड ऑल्सो यू कैन यूज. अगर विसिनल डाइहेलाइड लेते हो तो भी अल्किन मिलेगा, जेमिनल डाइहेलाइड में भी आपको अल्किन मिलेगा. ये Zn, ये X2, ZnX2 और फिर यहाँ पे एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, तो हमको मिलेगा ये अल्किन. बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है. जेमिनल डाइहेलाइड का रिएक्शन जरा ध्यान से देखिएगा. बाई प्रोडक्ट इज ये ZnX2, ये ZnX2. यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दिया CH और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. बहुत इजी रिएक्शन है. वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन हमने जो पढ़ा उसमें थोड़ा डिटेल हमें जाना है. 11th method is that, so take geminal dihalide and with a 4 sodium, so this 4 sodium react with this 4 Br and we get product the 4 NaBr, and due to the 2 Br release from here, 2 Br release from here, so what happens by releasing in presence of dry ether, क्योंकि यहाँ water हम use नहीं कर सकते. Why? Because water react with sodium and it form a sodium hydroxide, remember. तो आपको ड्राई ईथर लेना है तो सोडियम थोड़ा एक्टिव होकर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके 4 NaBr हमें देगा. और बाद में ये CH और CH दोनों की दो वैलेंसी फ्री हो गई तो दोनों के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट CH3 CH ब्यूटूइन. ओके, अगर आप जेमिनल डाइहेलाइड लेते हो 1 मोल, देन ऑल्सो प्रोडक्ट इज, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है. इसमें आपको इथिन प्रोडक्ट मिलेगी. NaI के साथ रिएक्शन करना है, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट. तो एक Br जो है वो सोडियम के साथ जाएगा, एक Br इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएगा IBr. ओके, और दोनों की एक एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हो गई, वो एज ए डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो दिस इज इथिन obtained by reaction with sodium halide, alkali metal halide first group and reaction with a vicinal dihalide. वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आस्क्ड इन मेनी एग्जाम. आप जब इसके रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आने वाला है, स्टीरियो केमिस्ट्री. तो जो बहुत बार पूछा है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है. अगर मेरे पास ये 1 2 स्टीरियो केमिस्ट्री में आप देखिएगा ब्रोमीन एक साइड है, मतलब कि लेफ्ट साइड है. स्टीरियो केमिस्ट्री में साइड देखनी होती है, लेफ्ट साइड. हाइड्रोजन दोनों है राइट साइड. तो ये है 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेन, दिस कंपाउंड. अगर इसका NaI के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और एसीटोन सॉल्वेंट रहेगा तो बाई प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, एक Br Na के साथ जाएगा, एक इंटर हेलोजन कंपाउंड बनेगा IBr. ठीक है, लेकिन यहाँ जो अटैक होगा, यहाँ अरेंजमेंट जो होगी, तो ये Br निकलने के बाद यहाँ जब हम SN2 मैकेनिज्म समझाते हैं तो ड्यू टू स्टीरियो केमिस्ट्री, आपको समझाने का नहीं है, ये दो आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. if bromine one side, then product is often trans. Okay, this one is the transbutene. 1 2 3 4. तो प्रोडक्ट आपकी रहेगी ट्रांसब्यूटुइन. ठीक है, उसमें ब्यूटीन होता है तो बच्चे ब्यूटीन लिख देते हैं, और एक ऑप्शन सिस ब्यूटीन होता है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा रिएजेंट ये है, मतलब सबस्ट्रेट ये है, तो जो प्रोडक्ट जो है वो हमें ट्रांस मिलेगी. इसमें आपको याद रखना है कि ब्रोमीन वन साइड. इसके मैकेनिज्म बहुत लंबी है, मैकेनिज्म में हम जाएंगे नहीं. ठीक है, अटैक की वजह से, ये स्टीरियो केमिस्ट्री से हम बोलते हैं ना स्टीरिक हिंड्रेंस. और अगर ऐसा है, यही रिएक्शन काफ़ी बार ऐसे पूछा गया है कि अगर एक ब्रोमीन लेफ्ट साइड है, दूसरा ब्रोमीन राइट साइड,
और वही रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी दैट प्रोडक्ट इज अ सिस प्रोडक्ट। इफ दिस आर ब्रोमीन ऑपोजिट साइड देन प्रोडक्ट इज सिस, तो ऑपोजिट प्रोडक्ट होती है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, वो ऐसे गलती करते हैं कि यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट ले लेते हैं हम NaBr और IBr, ले ली बाई प्रोडक्ट, और बाद में यहाँ डबल बॉन्ड रख देते हैं और इसको सिस दिखा देते हैं कि मिथाइल मिथाइल ग्रुप एक साइड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड। ऐसे नहीं होता है, यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट सिस होगी कि ट्रांस होगी। ड्यू टू द स्टेबिलिटी रीजन एंड स्टीरिक हिंड्रेंस दिस प्रोडक्ट इज ट्रांस। और यहाँ पे आप देखिए तो एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, ठीक है, तो ये मिथाइल जो है एडजस्ट हो रहा है, ये मिथाइल यहाँ पे एडजस्ट होगा, सॉरी ये हाइड्रोजन इस साइड है ना, हाँ, तो ये हाइड्रोजन इस साइड है, तो ये मिथाइल इस ब्रोमीन की जगह पे एडजस्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है, तो ये मिथाइल यहाँ पे एडजस्ट होगा, ठीक है, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ये मिथाइल भी यहाँ पे ही एडजस्ट होगा, ठीक है, तो ये सिस 1 2 3 4, तो सिस ब्यूट 2 इन प्रोडक्ट आपको मिलेगी। फिर से मैं दिखा देता हूँ, Na और यहाँ से Br निकलेगा तो यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है, और दूसरा जो मिथाइल है यहाँ से Br निकलेगा तो भी मिथाइल का जो है ये शिफ्टिंग यहाँ नहीं होगा, मिथाइल का शिफ्टिंग ऑपोजिट होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, तो सिस प्रोडक्ट मिलेगी। ये ऐसे ही होगा, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री और प्रोडक्ट की जो केमिस्ट्री है वही बताती है, ठीक है, प्रोडक्ट पहले मिलती है बाद में हम समझाते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, मिथाइल यहाँ पे ही शिफ्ट होगा, ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, मिथाइल यहाँ पे ही शिफ्ट होगा, सिस सिस मिलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। This is the repeat, and that one is the pyrolysis. Pyrolysis, you know, one product is alkane and another product is alkene. Alkane is always one. अल्केन जो आप बनाते हो वो प्रोडक्ट एक ही मिल सकती है, अल्किन आप एक से ज़्यादा कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सेचुरेटेड प्रोडक्ट एक ही मिलती है क्रैकिंग में। तो यहाँ पे 4 है तो मैंने 3+1 का क्रैकिंग किया है, एक कार्बन वाला उसको मीथेन बना दिया, ये रहा मीथेन, और 3 कार्बन वाला हमको अल्किन मिलता है। यहाँ पे 6 कार्बन है तो मैंने 3 का क्लीवेज किया है, 3, तो 1 product of 3 carbon that is alkane and another product of 3 carbon that is alkene, okay, तो by cracking means by pyrolysis also we can prepare alkenes। तो टोटल मैंने अगले लेक्चर में एक और यहाँ पे 11, तो टोटल 12 मेथड्स आई एक्सप्लेन यू हाउ alkene is prepared and that is very very most important। जो टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं और बहुत कम टच करते हैं कॉम्पिटिटिव वाले, वो मैं यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी अच्छी है वो मैंने यहाँ ली है, कुछ रूटीन प्रॉपर्टी उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इथिन ग्रुप है तो एक एक इथिन ऐसा है जो उसमें कलर होता है, बाकी सब कलरलेस होते हैं। ऑल alkenes are insoluble in water but soluble in organic solvent। we know very well इथिन जो ट्रांस होते हैं वो कुछ पोलर, सिस होते हैं वो कुछ पोलर होते हैं, हमने 11th में हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, ट्रांसब्यूटिन एंड सिस ब्यूटुइन। और एक चीज़ पूछी जाती है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट लगाना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस से ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज इन सिस पोलरिटी इज देयर, इन ट्रांस म्यू इज इक्वल टू 0, इट इज़ नॉन पोलर इज देयर। ट्रांस आइसोमर जो है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि उसमें अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक साइड आते हैं, मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन एक साइड हो जाते हैं, तो ट्रांस आइसोमर की स्टेबिलिटी रिलेटिव हम देखें तो सिस आइसोमर से ज़्यादा होती है। और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें तो उसमें या तो हिट्रोलिटिक फिशन होगा या तो होमोलिटिक फिशन होगा। होमोलिटिक फिशन कार्बन फ्री रेडिकल ऑब्टेन, हिट्रोलिटिक फिशन कार्ब कैटायन कार्ब एनायन इज ऑब्टेन। कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं, तो अल्किन में अगर जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। जैसे ये इथिन, इसमें एक अल्काइल ग्रुप, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप,
यहाँ दोनों जगह पे एक एक अल्काइल ग्रुप। तो ये कभी कभी कुछ रीजन से ग्रेटर, थोड़ी ग्रेटर होती है, या तो दोनों की रिएक्टिविटी इक्वल होती है। यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप आ गए और ये यहाँ पे 4 अल्काइल ग्रुप आ गए। सो एज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। अब केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ रिएक्शंस जो है वो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। कुछ आपका नोन है, कुछ अननोन है। अगर आप हेलोजन के साथ, मेजोरिटी ऑल रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। 3 मिनट लगेंगे समझने में। आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करना है। ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पॉजिटिव लेना है। आपको आप कहाँ कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ। और कुछ ग्लिम्पसेस मैं आपको दूंगा क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेज रूल, कुछ ऐसा भी लगेगा इसमें। तो ऑल रिएक्शंस आर एडिशन, ये जरा नोट कर लीजिएगा। सभी रिएक्शन, क्योंकि बाय ब्रेकिंग पाई बॉन्ड ऑल रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शन। अगर हेलोजन यूज करते हैं तो सॉल्वेंट चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर नहीं चलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर हेलोजन के साथ रिएक्शन करके हेलो एसिड बाय हाइड्रोलिसिस बना सकता है। तो एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। ये तो पुराना रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबाटियर सैंडरसन रिएक्शन। अब कुछ नहीं था, सबाटियर सैंडरसन रिएक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन होता है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये याद दिला रहा हूँ। ये हाइड्रोजन हेलोजन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, एक जगह पे H प्लस ऐड होगा, एक जगह पे X माइनस। जहाँ पे आप प्लस देंगे वहाँ पे माइनस आएगा, जहाँ पे माइनस देंगे वहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है हेलोजन ऐड होगा। अगर ये अल्किन सिमेट्रिक है तो मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एसिमेट्रिक है तो मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और HBr के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और HBr, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। बर्च रिएक्शन फिर से आ रहा है। वो जो बर्च रिएक्शन था वो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। वो अल्किन हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ये वो भी एडिशन था। आप जरा ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या था साहब कि ऐसे था ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो उसमें मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड किए थे और अल्किन बनाया था, तो वो बर्च ही था। यहाँ पे मेरे पास अल्किन है और मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, सेम रिएक्शन, तो मुझे अल्केन मिलेगा। बर्च अगर सेकंड टाइम करेंगे तो अल्काइन कन्वर्टेड टू अल्किन एंड अल्किन कन्वर्टेड टू अल्काइन। तो प्रोडक्ट भी पूछी जाती है और ये रिएजेंट काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा रिएजेंट इसमें यूज होगा। अब सल्फोनेशन करेंगे तो यहाँ पे H प्लस आयन है, H प्लस है, मना नहीं कर सकते आप। SO3H प्लस एंड H माइनस ऐसे होता है। SO3H प्लस HSO4 माइनस, ये थोड़ा गलत कर दिया है, OH माइनस, यहाँ पे OH लगेगा, ठीक है। इसका ऐसे होता है OH माइनस HSO3 प्लस, ओके। हाँ, ये जरा करेक्शन कर लेगा, यहाँ पे OH आएगा, OH लगेगा, ठीक है। सीधा ये यहाँ पे थोड़ा मैंने एक्सपांड करके दिया है क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस से मैंने यहाँ पे HOH बाद में लगाया। तो अगर यहाँ पे OH है और आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो SO3H का भी OH हो जाएगा, तो दोनों जगह पे OH आ जाएगा। ये थोड़ा रिएक्शन गलती वाला है तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। H2SO4, इसके दो आयन H प्लस, सॉरी, SO3H प्लस और OH माइनस। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, OH माइनस SO3H प्लस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, H2SO4 हो गया। और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो SO3H भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों जगह पे OH आ जाएगा, ठीक है। सीधा हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ भी मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ लगेगा। यहाँ हाइड्रोलिसिस एसिडिक वाटर आपको लेना है, H प्लस OH माइनस, तो ऑपोजिट आयन लगा दीजिए। नाइट्रेशन अगर आप करेंगे HNO3 में तो यहाँ पे ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, OH माइनस
NO2 प्लस, एक जगह पे पॉजिटिव आयन, एक जगह पे नेगेटिव आयन। नाइट्रेशन, एसिटिलेशन, एसिटिलेशन भी यहाँ पे एनहाइड्रस, जो हम ऑर्गेनिक एरोमेटिक में करते हैं ऐसे ही करना है। CH3CO प्लस, तो कार्बन नेगेटिव पे प्लस जाएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा। ऑक्सीडेशन करेंगे आप सीधा डायरेक्ट, तो जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल। केमेनोफोर्स के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे और बेसिक मीडियम रखेंगे तो फिर से दोनों कार्बन पे OH OH ग्रुप लगेगा। हॉट केमेनोफोर रखेंगे और एसिडिक ऑक्सीडेशन करेंगे। ये आगे वाला जो था वो बेसिक ऑक्सीडेशन था, KOH मतलब बेसिक ऑक्सीडेशन। अगर गर्म केमेनोफोर यूज करेंगे, केमेनोफोर यू नो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको इथिन में से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत बढ़िया है। ये अभी हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें आने वाला है। जैसे कि मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें इसकी ओजोनोलिसिस करना है, तो ये डबल बॉन्ड टूट के एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ऐसे टेम्पल टाइप बन जाएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड जो है एक निकल जाएगा, पूरा पूरा दोनों बॉन्ड निकल जाएंगे। इज इट क्लियर? अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 कीटोन ग्रुप मिलेंगे। कैसे कीटोन ग्रुप मिलेंगे? यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए, एक कीटोन ग्रुप, दूसरा कीटोन ग्रुप, 2 कीटोन ग्रुप। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो ऑक्सीजन है वो एज जिंक के साथ एज ZnO चला जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, बाद में हम JEE मेन में 12th में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं 11th का पूरा सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक्स में से पूछे जाते हैं। आपको जब भी इच्छा हो तो हमारी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं निकलना है, वही बार बार या तो हमारी 11th की नोट्स वो पढ़नी है। उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें मेमोरी आपकी ज़्यादा काम आती है। उसमें पूछा जाता है कि इसकी ये प्रॉपर्टी, कि इसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होता है। तो उसमें मैं आपको राय दूंगा कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक का यूज़ मत करिए। NCERT में का जो मैंने इनऑर्गेनिक 11th का S ब्लॉक के 2 ग्रुप और P ब्लॉक के 2 ग्रुप 13 14 जितना NCERT में है वो सफिशिएंट है। आज की डेट में पिछले 10 साल के पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो टेक्स्ट बुक के बाहर से कोई क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आया नहीं है, क्योंकि उसमें कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, सीधा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंटरेस्टिंग है, वो सीधी वो लोग पूछ लेते हैं। मेन और नीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्काइन की अगर मैं बात करूं तो अल्काइन का ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। प्राइमरी मतलब कि उसका अल्काइन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। एसिटिक ऑर्डर अगर देखें अल्काइन का, और पूरा पूरा हम ये काफ़ी बार पूछा जाता है इसलिए मैंने कलेक्ट करके लिखा है। तो ये सब देखिए, हाइड्रोकार्बन में वाटर सबसे एसिडिक है। मतलब कि अब अल्कोहल को मैंने बोला था कि एसिड बोले या ना बोले, ये एक क्वेश्चन है। उससे भी कम एसिडिक है ये इथाइन, और ये तो एमोनिया तो हम बेसिक लेते हैं, फिर भी एसिडिक ऑर्डर में लिया है, ठीक है। और इसके बाद डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकलता है ना, इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टी आती है, लेकिन सिर्फ इथाइन में, बाकी कोई अल्काइन में नहीं, ठीक है। सो दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। इसमें यहाँ तो ये बेस आ जाता है, तो बिल्कुल ये एसिड नहीं है। लेकिन लिखने के लिए अगर ऑर्डर पूछे कि नहीं हमें इसका, क्योंकि कोई भी कंपाउंड इन केमिस्ट्री नॉट 100% एसिडिक, नॉट 100% बेसिक है। जो एसिड है उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए हम उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो बेस को भी हम एसिडिक ऑर्डर में, ऐसे ये हाइड्रोकार्बन को कंपेयर करना है तो मैंने यहाँ ये लिया है, ठीक है।
अब देखिए अल्काइन दो तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन मतलब कि जितना लंबा अल्काइन हो उसके टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। नॉन टर्मिनल अल्काइन मतलब कि बीच में दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड ये ही एसिडिक है, बाकी कोई एसिडिक नहीं है, ध्यान में रखना। कभी क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन हैज एसिडिक प्रॉपर्टी, तो यही सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम सोल्ट बनाता है। वो 11th में हमने डिस्कस किया, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इतना ध्यान रखिए कि एक ही अल्काइन एसिडिक है और वो है इथाइन, जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। इज इट क्लियर? अब आइसोमेरिज्म की बात करके हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म में इसमें चेन आइसोमेरिज्म आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये 3 कार्बन है, इसकी मैंने यहाँ पे चेन सॉरी पेंट वन आइन है और 2 मिथाइल ब्यूट वन आइन है। 1 2 3 4 दोनों में 5 कार्बन है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टर्मिनल ही है, यहाँ पे टर्मिनल है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे 4 कार्बन की ब्रांच हो रही है, ये 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो ये चेन आइसोमर हुए। पोजीशन आइसोमर आपको पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, यहाँ डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे, बस। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये एक बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ब्यूट वन आइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, 4 कार्बन। देखिए 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 6 हाइड्रोजन 6। यहाँ पे देखिए 2 डबल बॉन्ड है, यू है ब्यूटा 1,3 डाइन। तो यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। हियर फंक्शनल ग्रुप डबल ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी बन सकते हैं। जो जो एग्जाम में पूछे वही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस कंडीशन वी आर कंप्लीटिंग द JEE main syllabus of 11th standard. From next lecture we will move to the 12th standard. Or is there any question? If you are solving questions and papers of previous year, then WhatsApp me or ask me personally, okay, or send me in a WhatsApp your doubts. लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आप धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव डेली 15 20 25 क्वेश्चन ये मैं जो समझा रहा हूँ इस हिसाब से करते जाइएगा, क्योंकि आप इस साल देखिए नीट और जी का पेपर बहुत ही इजी निकला। जिस बच्चों ने लॉकडाउन में घर में बैठ के सिर्फ टेक्स्ट बुक में से प्रिपरेशन की वो आराम से MBBS में जाएंगे, ठीक है, आराम से 500 ऊपर। तो ये बेनिफिट आपको भी मिल सकता है, तो डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सीधा पढ़ के आंसर दे सकते हो, ठीक। कुछ 4-5 क्वेश्चन लॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन इस साल का मैंने दोनों पेपर और JEE में भी पेपर देखे तो सीधा NCERT बुक का जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।